نیب لانڈری میں تاریخ کی سب سے بڑی دھلائی، ہٹ ہو گیا پلی بارگن ڈٹرجنٹ۔ سابق سیکرٹری خزانہ بلوچستان مشتاق رئیسانی اور خالد لانگو کے فرنٹ مین 2 ارب روپے جمع کرانے پر رضامند، درخواستیں منظور۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، سابق وزیراعظم پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پارک کیس میں 2 نئے ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری۔ ڈینگی مچھر چکن گونیا پھیلانے کا باعث، ملیر اور کماڑی کے بعد کورنگی میں بھی پنجے گاڑ لیے۔ وبا قرار دینے کے لیے حکومت کو عالمی ادارہ صحت کی تصدیق کا انتظار، صورتحال انتہائی تشویشناک۔ چلن یار میرے سے میری کمر میں بھی درد ہو رہا ہے اور ہاتھ پہ کام نہیں کر رہا۔ سنہرے مستقبل کے خواب کی بھیانک تعبیر، بلوچستان سے انسانی اسمگلنگ کے مکروہ دھندے کا انکشاف، ایجنٹ لاکھوں روپے لے کر عوام کو لوٹنے لگے، ایران اور ترک سرحد سے لاشیں ملنا معمول بن گیا۔ ملتان کچہری کے رجسٹری آفس میں آتش زدگی سے 150 سال پرانا ریکارڈ جل گیا، آگ لگی کیسے، وجوہات سامنے نہ آ سکیں، کیا تحقیقات بھی دھواں ہو جائیں گی، عوام کا سوال۔ موٹر کے ارد گرد جتنی پراپرٹیز ہیں ساری کی ساری مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے، اور جو اصل مالکان ہیں ان کو ان کے اصل حق سے محروم کرنے کے لیے یہ سازش کی گئی۔ اس میں پرانی عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، انویسٹیگیٹ کریں گے تو پتہ چلے گا، اور اس کا بیک اپ کوئی نہیں ہوتا۔ مہنگی زمینوں کا ریکارڈ جل گیا، بیک اپ نہ ہونے کی تصدیق، ملتان کچہری میں آگ کے بعد اراضی کی ملکیت ثابت کرنا مشکل، وکلا کو سازش کی بو آ گئی۔ کراچی میں سانحہ کارساز کی تحقیقات، سی ٹی ڈی حکام کا سابق صدر پرویز مشرف کو نوٹس، تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت۔ بے نظیر کی شہادت پر انصاف نہیں ملا، خواتین پر تشدد کرنے والوں کو سزا دلانے کا نظام لانا ہوگا، قانون بنتے ہیں عمل درآمد نہیں ہوتا، بلاول کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان اور بوسنیا کا زراعت، ٹیکسٹائل اور دفاع میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، تجارتی حجم میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، وزیر اعظم کی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس۔ پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی نیٹ ورک موجود نہیں، افغانستان بہکاوے میں آ کر کسی اور کا کھیل نہ کھیلے، غیروں کے کہنے پر الزامات برداشت نہیں، چودھری نثار کا 2 ٹوک پیغام۔ کلبھوشن یادو پر بھارتی پروپیگنڈا مسترد، پاکستان کا کیس کمزور نہیں، شواہد موجود ہیں، ڈوزیئر کے لیے اضافی معلومات کی بات کی تھی، سرتاج عزیز بول پڑے۔ چودھری نثار ہدایت نہ دیں، آئی جی سندھ کی تعیناتی مرضی سے کریں گے، مراد علی شاہ کا پیغام۔ این ایف سی ایوارڈ پر تحفظات، اضافی ذمہ داریوں کے بدلے اضافی فنڈز دینے کا مطالبہ۔ وفاق بلوچستان کو جائز حق اور حصہ دینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، ضرورت پڑنے پر پنجاب قربانی دے گا، سی پیک کو دشمن بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، شہباز شریف کا گوادر کے طلباء سے خطاب۔ کپتان پر دھاڑنے والے رانا ثناء اللہ کی پی ٹی آئی سے قربتیں، فیصل آباد میں میئر کے الیکشن کے لیے کھلاڑی سے ملاقات، ممتاز چیمہ کا لیگی امیدوار کی حمایت کا عندیہ۔ اشتعال انگیز تقریر کیس، متحدہ لندن کے رہنما حسن ظفر اور امجد اللہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، محفوظ یار خان کی ملاقات، اپنے اشتہاری ہونے کا علم ہونے پر 9-2-11، ملزمان کی کیفیٹیریا میں تواضع۔ پکا قلعہ حیدرآباد میں پاک سرزمین پارٹی کے 23 دسمبر کو جلسے کی تیاریاں عروج پر، شہر میں قومی پرچموں کی بہار، استقبالیہ کیمپ بھی لگ گیا۔ پی آئی اے کے 5 بوئنگ طیاروں کی خریداری میں بے ضابطگیاں، سودے شفاف نہیں تھے، ادارے کی مالی حیثیت کو سامنے نہیں رکھا گیا، ایف آئی اے کی تحقیقات میں انکشافات۔ کراچی سے جدہ ہیروئن سمگل کرنے کی کوشش ناکام، پی آئی اے کے طیارے سے 15 کلو ہیروئن برآمد، 3 ملازم پوچھ گچھ کے بعد رہا، تحقیقات کا آغاز۔
दुनिया न्यूज पर खबर, नहर स्वेज में फंसे पाकिस्तानियों की सुनी गई, अमले को कानूनी मुआवनत मिल गई, पासपोर्ट वापस, सफारत खाने ने वतन लाने के लिए इंतजामात कर लिए। हब डैम से कराची को पानी की फराहमी मुतासिर, 20 मिलियन गैलन कमी का खदशा, जिला गरबी सबसे ज्यादा मुतासिर, मरम्मत का काम कल तक मुकम्मल होने का इम्कान। पंजाब में 3 साल के बाद नए असलहा लाइसेंस बनाने पर पाबंदी उठाने का फैसला, समरी तैयार कर ली गई। गुजरावाला में जाली असलहा लाइसेंस बनाने का धंधा, डीसीओ ऑफिस लाहौर का अमला भी मुलविस निकला, 2 क्लर्क समेत गिरोह के 4 कारिंदे गिरफ्तार। नए साल के आगाज पर महंगाई का वार, अवाम हो जाए तैयार, 1 जनवरी से पेट्रोल 1.5 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। जहां करप्शन के ऐब नैब से धुल रहे हैं, 2 अरब रुपए लाओ और दूध के धुले हो जाओ, प्ली बार्गेन डिटर्जेंट मार्केट में आ चुका है। नैब लॉन्ड्री में तारीख की सबसे बड़ी धुलाई देखने में आ रही है। बलोचिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल के मुलजिमों की जांच की प्ली बार्गेन दरखास्त मंजूर कर ली गई है। मुश्ताक रईसानी और खालिद लांगू 2 अफराद जिनका नाम आया था इस करप्शन स्कैंडल में। मुश्ताक रईसानी जो कि ब्यूरोक्रेट थे और उनके घर से करोड़ों की तादाद में रुपए मिले थे, ये वो बैग थे। उस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं जब नोटों की गड्डियां उनके घर से बरामद हुई थी, लेकिन अब उनको एक सहूलत दी जा रही है और वो सहूलत यह है कि जनाब 2 अरब रुपए लाइए और दूध के धुले हो जाइए। प्ली बार्गेन डिटर्जेंट है, नैब की जानिब से ऑफर किया जा रहा है। नैब लॉन्ड्री है जिसमें तारीख की सबसे बड़ी धुलाई होने जा रही है। डिटर्जेंट नैब का प्ली बार्गेन डिटर्जेंट, करप्शन के बड़े बड़े मगरमच्छ धुलकर साफ शफाफ, जी भरकर कौमी खजाना लूटो, 10-15% वापस देकर छूट जाओ, यानी फिकर न फाका, ऐश कर काका। इस बार फिर यही हुआ। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में साबिक सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान मुश्ताक रईसानी और साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू के फ्रंटमैन की प्ली बार्गेन दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। कौमी खजाने को लूटने वाले दोनों अफराद अब 2 अरब रुपए जमा कराएंगे और दूध के धुले हो जाएंगे। नैब हुक्काम तो फूल नहीं समा रहे। तर्जुमान कहते हैं 2 अरब रुपए नैब की तारीख की सबसे बड़ी प्ली बार्गेन है। कोयटा में मुश्ताक रईसानी के घर से 73 करोड़ रुपए नकद और सोना बरामद किया गया था। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक वजीर आजम परवेज अशरफ के खिलाफ भी रेंटल पावर केस में 2 नए रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। तो तय ये हुआ कि मेगा करप्शन हुई तो क्या हुआ, नैब मार्का प्ली बार्गेन डिटर्जेंट है ना। नैब की प्ली बार्गेन लॉन्ड्री का कमाल देखेंगे, करप्शन के बड़े बड़े मगरमच्छ धुलकर साफ शफाफ नीट और साफ सुथरे होकर सामने आते हैं। मेगा करप्शन ये थी, शायद ये कहा जा सके कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन थी। घरों के अंदर से इतनी बड़ी तादाद पैसों और डॉलर्स की मिली थी, लेकिन अब यह है कि नैब मार्का प्ली बार्गेन डिटर्जेंट का इस्तेमाल हुआ है। नैब की प्ली बार्गेन लॉन्ड्री का यह कमाल है कि करप्शन के बड़े बड़े मगरमच्छ धुलकर साफ शफाफ नजर आते हैं। नैब के प्ली बार्गेन पॉलिसी क्या है, कोई नहीं जान रहा। इसमें किसका कितना हिस्सा होता है और कौमी खजाने में कितना पैसा जाएगा, ये एक सवाल है। तो जवाब जानते हैं, अपने नुमाइंदे आमिर सईद से बात करते हैं। जी आमिर। जी सलमान, नैब ने ये एक दावा किया है कि एक बहुत बड़ी रिकवरी की है और अब तक नैब का ये दावा है कि 280 अरब रुपए की रिकवरी की जा चुकी है जब से नैब का इदारा कायम कर रहा है। नैब हुकाम का ये दावा है कि इसमें ये जो तमाम रकम है ये कौमी खजाने में जमा करवाई जाएगी और जो मुश्ताक रईसानी हैं ये जिस दिन प्ली बार्गेन होगी उसी दिन इनको जो जिस गवर्नमेंट में ये जॉब कर रहे हैं उनसे बरतरफ कर दिया जाएगा, मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा और 10 साल तक ये नौकरी पर बहाल नहीं हो सकेंगे और 10 साल के बाद ये शायद दोबारा बहाल हो सकते हैं। ये इसके अलावा इनके हवाले से ये भी कहा गया कि इन्होंने एक तहरीरी जो मुआहिदा किया है नैब के साथ, उसमें यह कहा है कि इस दौरान जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होंगी उसमें जो रिकवरी होगी वो तमाम ये कौमी खजाने में जमा कराएंगे। इसके अलावा इनके 11 बेंगलोज हैं कराची में जिसकी मालियत तकरीबन 180 अरब रुपए है और वो बेंगलोज जो हैं वो नीलाम किए जाएंगे और उनकी जो रकम आएगी वो भी कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। और मुश्ताक रईसानी के साथ खालिद लांगू भी हैं, उन्होंने भी नैब से इस्तदा की रखी है प्ली बार्गेन की, लेकिन अभी तक उनका फैसला
फैसला नहीं हुआ। ताहम अच्छा आमिर, अफसर की परसेंटेज क्या है और उस अफसर की परसेंटेज क्या है जिसके तवज्जुह से ये 2 अरब रुपए प्ली बार्गेन के जरिए खजाने में जमा हो रहे हैं? जी सलमान, इस हवाले से इब्तदाई तौर पर तो जो एहतसाब ब्यूरो था वहाँ पर कुछ परसेंटेज रखी गई थी जो तफ्तीशी अफसर को और पूरी जो टीम होती थी उसको दिया जाता था, लेकिन अब जो है वो इसमें तरमीम कर दी गई थी और अब जो है वो नैब की तफ्तीशी टीम को शायद इससे कुछ भी ना मिले और नैब हुकाम यही बताते हैं कि पूरी रकम जो है वो कौमी खजाने में डायरेक्टली कैश जमा करवाई जाएगी और इसके अलावा जो उनकी जायदादों की जो आने वाली रकम है वो नीलाम की जाएंगी जायदादें और उसके बाद वो रकम जो है वो कौमी खजाने में जमा करवाई जाएगी। और नैब हुकाम का यही कहना है कि शायद उनको इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा। जी बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी। प्ली बार्गेन एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। नैब अफसरान की लगता है पांचों घी में है, सर कड़ाई में है। हमारे नुमाइंदे का यह कहना है कि अब थोड़े असूल बदल गए हैं, शायद नैब अफसर को कोई पैसा ना मिले क्योंकि 2 अरब रुपया खजाने के अंदर जा रहा है। लेकिन यह भी कहा गया है जिस मुल्जिम पर इल्जाम साबित हुआ है वो 10 साल तक कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, चाहे इसके कि उसके पास खजाने में अगले 100 साल की तनख्वाह मौजूद हो। मेगा करप्शन हुई है और नैब ने इनिशिएटिव यह लिया है कि 2 अरब रुपए खजाने में जमा कराएं और बाहर चले जाएं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी प्ली बार्गेन हुई है, इसी पर बात करते हैं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, इस्लाम में तो ये उसूल है कि चोर के हाथ काटे जाएं और मुजरिम को सजा दी जाए, लेकिन नैब कौमी खजाना लूटने वालों से लूटी हुई रकम का एक मुख्तसर हिस्सा वसूल करके इसे पाक साफ करार देता है। अगर किसी आदमी का अपना जाती मामला है और नैब उनके जाती मामले में आपस में उनको कर कर लेता है, जैसे 2 ताजिरों में इख्तिलाफ हुआ, सुलह हो गई कि भाई 50% देंगे, तो कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। लेकिन मसला ये है कि कौमी खजाने में जो रकम है वो इज्तिमाई रकम है, न नैब की रकम है, न वजीर आजम की, न वजीर आला की, बल्कि मुल्क की आवाम का हर एक का पैसा है उसमें लगा हुआ। लिहाजा नेब को क्या मुल्क के वजीर आजम और सदर को भी माली उमूर के अंदर खत्म करने का कतई इख्तियार नहीं है। और आपको मालूम है, एक वाक़या मशहूर है, हजरत उमर अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की जब शादी हुई मरवान की बेटी फातिमा से, तो फातिमा के पास बड़ा माल था। तो उमर अब्दुल अजीज ने कहा कि तुम्हारे बाप ने माल जो लिया है ये कौमी खजाने का माल लिया है, लिहाजा इसको वापस करो। उसने कहा मेरे बाप ने तो मुझे मालिक बना दिया। आपने फरमाया कि कौम का माल है, कौम के माल में तुम्हारे वालिद को ये हक नहीं था कि किसी को मालिक बनाते, लिहाजा चुनाचे तुम अगर मेरे साथ रहना है तो तमाम माल को बैतुल माल में जमा करो। चुनाचे फातिमा ने पूरा माल जो है बैतुल माल में जमा। मुफ्ती नईम साहब, क्या शरीयत में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है कि मुजरिम को प्ली बार्गेन के जरिए क्लियर किया जाए और वो दोबारा अपनी सीट पर वापस आ जाए? शरीयत में बिल्कुल कतल इजाजत नहीं है, न नेब को न मुल्क के वजीर आजम को, कि कौमी माल को माफ करे और उसके बाद उस सीट पर दोबारा ले आए। तो इसका मतलब ये कि चोर और डाकू को दोबारा लाया जा रहा है, जो हमारे मुल्क का एक तरीकाकार है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाजायज है, हराम है इस तरीके से माल को खाना, ये किसी सूरत में भी इजाजत। तो मुफ्ती साहब, फिर हाकिम वक्त पर इसकी क्या जिम्मेदारी आयद होती है? हाकिम ने वक्त को भी इख्तियार नहीं कि कौमी खजाना जो है वो माफ करे, या कौमी खजाना जो कौमी खजाना किसी का शख्सी मामला है वो शख्सी आपस में जो कुछ चाहे कर सकते हैं, लेकिन इज्तिमाई माल जो है उसके अंदर हाकिम वक्त को भी इख्तियार नहीं माफ करने का, और न ही कोई ऐसा कानून बनाने का इख्तियार है कि वो जिसको चाहे माफ करे। ठीक है, प्ली बार्गेन पे शरीयत क्या कहती है? बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए मुफ्ती नईम साहब। अवाम का पैसा लूटने के अलावा बलोचिस्तान में एक और धंधा भी अरूज पर है। बलोचिस्तान के रास्ते इंसानी स्मगलिंग का घनाना कारोबार। पंजगोर, तुर्बत और ग्वादर इंसानी स्मगलरों की जैसे जन्नत बने हुए नजर आते हैं। स्मगलर 1 से 5 लाख रुपए लेकर इंसानी जिंदगियों से खेलने लगे। यूं तुर्की और ईरानी सरहदों पर फायरिंग से सैकड़ों पाकिस्तानी जाने गंवा बैठते हैं। बलूचिस्तान के सरहदी इलाके इंसानी स्मगलिंग की ऐसी गुजरगाह है जहां महाना तकरीबन 10,000 अफराद ईरान और तुर्की के रास्ते यूरोप जाने के ख्वाब आंखों में सजाए इस घनौने कारोबार का हिस्सा बन जाते हैं। एजेंट मासूम अफराद को वरगला कर 6 से 8 लाख रुपए के एवज इनकी जानों को ऐसे खतरे में धकेल देते हैं जहाँ पर वापसी के इम्कानात ना होने के बराबर है।
सितंबर 2016 में 3,776, जबकि अक्टूबर में 4,472 और नवंबर में 2,339 इंसानी स्मगलिंग के शिकार अफराद को ईरान और तुर्की की जानिब से डिपोर्ट किया गया, जो तफ्तान बॉर्डर पर ही मामूली जुर्माने देकर फिर से एजेंट से राब्ता करते हैं। अक्टूबर और नवंबर 2016 में सिक्योरिटी इदारों ने 1500 से ज्यादा अफराद को सरहद अबूर करने से रोका। इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी लेहर है, हमारी एजेंसीज का भी लेहर है, हमारी सिस्टम का भी लेहर है कि जब तक वो हम लोग इन चीज़ों पे नजरसानी नहीं करेंगे, कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। बलूचिस्तान के तफ्तान बॉर्डर पर हर माह ईरानी और तुर्की की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को 20 से 25 अफराद की लाशें मिल रही हैं, और ये लावारिस लाशें सरहदों पर बेगौर और कफन पड़ी इंसानी स्मगलिंग के खौफनाक अंजाम की कहानी सुनाती हैं, जबकि हर माह 5% अफराद लापता भी हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ इरफान सईद, दुनिया न्यूज, कोयटा। वेलकम बैक। खबर दें आपको कराची से, जहां पर बेचैनी फैलाने वाला मच्छर बिलाखिर मिल ही गया। जी हां, चिकन गुनिया नामी ये वायरस फैलाने वाला मच्छर आखिर मिल गया। डेंगू मच्छर ही मुजरिम निकला। मलीर सऊदाबाद अस्पताल में मजीद 700 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। देखते हैं इस बारे में किफायत अली शाह की रिपोर्ट। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम सिंध ने कराची में फैली मुश्तबा बीमारी का पता चलाने के लिए मुख्तलिफ इकसाम के मच्छर पकड़े हैं। प्रोग्राम के अफसरान के मुताबिक उन्हें वो वेक्टर मलीर से मिला है जो चिकन गुनिया फैलाता है। हमने जो सर्वे किया उसमें हमने एडिस एजिप्टाई जो है इसी ही लोकेलिटी से जिस पेशेंट थे मिले हैं, वहाँ से पकड़े हैं हमने। उधर मलीर में मुश्तबा बीमारी चिकन गुनिया से मुतासरा मजीद 700 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अस्पताल में मरीजों से लिए गए डेटा के मुताबिक बीमारी से मदीना कॉलोनी, लियाकत मार्केट और खोखरा पार्क के मकीन ज्यादा मुतासर हुए हैं। घुटनों में दर्द है, इधर आज 15-16 दिन हो गए, ऐसे बाजू नहीं होते हैं, लेट नहीं सकती, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, चलन नहीं आ रहा मेरे से, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है और हाथ पे काम नहीं कर रहा सही से। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल के माहिर डॉक्टरों ने भी मरीजों के खून के नमूने जमा किए हैं। सूबाई वजीर बहबूद आबादी शमीम मुमताज कहती हैं कि आलमी इदारा बराए सेहत की तस्दीक के बाद इसे वबा करार दिया जाएगा। ये वबा नहीं थी, ये नॉर्मली एक सीजन होता है कि बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है। देखिए, जोड़ों में दर्द एक आम है जो हर एज में होता है, हर मौसम में होता है। उधर आगा खान अस्पताल के माहिरीन ने खून के नमूने तस्दीक के लिए अमेरिका की लेबोरेटरी रवाना कर दिए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मलेरिया में फैलने वाली बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है, लिहाजा मच्छर के काटने से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कैमरामैन इमरान शेख के साथ किफायत अली शाह, दुनिया न्यूज, कराची। अफगानिस्तान के सामने खड़े होकर चौधरी निसार आज खूब बोले। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कोई नेटवर्क नहीं, चौधरी निसार ने यह कहा। अफगानिस्तान की हर बात मानेंगे, धमकियां कबूल नहीं। अफगानिस्तान किसी के बहकावे में ना आए, चौधरी निसार का यह भी कहना था। और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को दो टोक पैगाम दिया है। दफ्तर खारिजा का यह कहना है कि अफगानिस्तान में तशद्दुद नहीं देखना चाहते, किसी के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को दो टोक पैगाम दिया है और पाकिस्तान ने कहा है कि किसी के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं है। इसी सिलसिले में दफ्तर खारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान में तशद्दुद नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हो गई, मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम नवाज शरीफ का बोस्निया बिजनेस फोरम से खिताब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात से अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। और समंदर की मुंह जोर लहरों से उलझने का जुनून। हवाई के साहिल पर वर्ल्ड सर्फिंग लीग के दिलचस्प मुकाबले।